Assalam alaikum. Hi guys. So today we're starting our first lecture of pharmacology lecture series, and today we're going to talk about laxatives. Please pause the video and read this. And let's begin. तो what are laxatives? Laxatives वो दवाइयाँ हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए दी जाती हैं या फिर अब कभी बाउल को प्रेप करना हो या एम्प्टी करना हो फॉर वट एवर रीज़न आपने अगर कोई प्रोसीजर करना है तो उसके लिए बाउल को अगर एम्प्टी करना हो तो तब भी ये यूज़ हो सकते हैं। तो जनरली फार्माकोलॉजी में यही तरीका होता है क्लासिफाई करने का ड्रग्स को कि हम उनके मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से उनको कैटेगराइज करते हैं, राइट? So we have these different categories based on how they are going to cause, emptying of the bowel. तो इसमें है जी irritants and stimulants, bulk laxatives, saline and osmotic laxatives, stool softeners, lubricant laxatives, and chloride channel activators. We're going to discuss each of them one by one. But first, generally for all laxatives, you have to understand कि अगर इनको हम long term use कर रहे हैं तो they do have a potential to cause electrolyte and fluid imbalances. Number two, कि obviously if you are speeding up the whole transit time in the gut, so there will be poor absorption of useful material, and also कुछ दवाइयाँ होती हैं जो delayed action extended release oral preparations होती हैं उनका भी फिर obviously effectiveness मुतासिर होगी, ठीक है? Also you may lose healthy gut flora, and it can also cause cramping and diarrhea. And also a lot of people, if they chronically use laxatives, they get dependent on it, right? So dependency ka ek risk is always there, except for the last category that I mentioned about chloride channel activators. उसमें dependency नहीं होती लेकिन बाकी सब में होती है, potential है. Also कुछ laxatives के अंदर magnesium होता है. अगर हम chronically उनको लेते रहते हैं तो they have a potential to cause hypermagnesemia. So let's begin. So the first category is irritants and stimulants. ये मैंने 4 नाम डाले हैं इसके अंदर. इसमें है जी बीजाकोडाइल, कैस्टर ऑयल, सेना एंड सोडियम पिकोसल्फेट. इनकी डोजेजेस हैं ऑब्वियसली इन डोजेजेस कोई जनरलाइज्ड वे में मैंने लिखी हैं. एडल्ट्स और पीडियाट्रिक डोजेस फ़र्क होती हैं, अकॉर्डिंग टू नीड फ़र्क होती हैं, फ्रीक्वेंसी भी हम अकॉर्डिंग टू नीड होती है, बट आई जस्ट पुट इट इन देयर फॉर इन्फॉर्मेशन. और साथ ही कुछ ब्रांड नेम्स थे पॉपुलर जो पाकिस्तान में मिलते हैं इनकी प्रेपरेशंस के. आई थॉट के दिस वुड बी हेल्पफुल, तो आई पुट दैट अप एज वेल. So yeah, irritants and stimulants basically they work by irritating the colon. ठीक है, कोलन का जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करता है एंड इट कॉज इट टू इंक्रीज पेरिस्टालसिस एंड देयर सिक्रीशंस. और जनरली 8 to 24 आवर्स के अंदर जो होता है वो बाउल मूवमेंट हो जाती है. ये उनकी पिक्चर्स हैं just to spark your interest. So first we'll talk about Bizacodyl. Bizacodyl जो होते हैं वो enteric coated tablets में और suppositories दोनों की फॉर्म में available है. It is a very potent colon stimulator. It acts on the nerve fibers in the colon mucosa. इसके side effects में cramps और atonic colon जो होता है that is seen. So be aware of that. Also, milk and drugs that increase stomach pH, antacids, PPIs, H2 receptor antagonists, in सबको they should not be taken at the same time as this, क्योंकि अंडरस्टैंड दिस ना कि जो स्टमक की पीएच को अगर बढ़ाते हैं, नॉर्मली स्टमक जो होता है वो एसिडिक होता है, तो ये जो प्रेपरेशंस होती हैं वो प्रीमेच्योरली डिज़ोल्व हो जाएंगी. सो उनका इफेक्टिवनेस जो होती है वो इम्पेयर हो जाती है और वो फिर स्टमक में ही प्रीमेच्योरली डिज़ोल्व हो जाएंगी और वहाँ पे गैस्ट्रिक इरिटेशन और पेन कराएंगी. Then we have Senna. Senna is ये इसकी पिक्चर है, a herbal kind of a thing. It's a very good laxative. ये भी कोलन को स्टिमुलेट करके एक्ट करता है and its active ingredients is a group of senosides. So Senna is also a stimulant laxative. इसके अंदर senosides होते हैं. It's taken orally and it causes bowel evacuation within 8 to 10 hours. It causes water and electrolyte secretion into the bowel.
इसकी क्रॉनिक यूज से कोलोनिक एटोनी हो सकती है, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट नोट। ऑल्सो जो ओपिएट इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन होती है उसमें इसका और डोक्यूसेट का कॉम्बिनेशन इज़ वेरी सक्सेसफुल। इसका एक इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट कह सकते हैं या आई डोंट नो effect is discoloration of brown discoloration of breast milk, yellow discoloration of urine and bowel. ये साइड पे मैंने एक तस्वीर इंसर्ट की है जो स्नेक स्किन की तरह लग रही है। तो ये मेलानोसिस कोलाई इसको कहते हैं। अंदर से वो काइंड ऑफ डार्कन हो जाता है एंड दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मेलेनिन। देन अनदर irritant stimulant is castor oil. Castor oil जो होता है it gets broken down into ricinoleic acid, and that's irritating to the stomach and that stimulates peristalsis. Please beware कि pregnant women castor oil ना लें, abortion हो सकता है इससे, uterine contractions होती हैं। ऑल्सो सोडियम पिकोसल्फेट ये भी इसी तरह स्टिमुलेंट इरिटेंट है और ये बाउल प्रेप के लिए या बाउल क्लियरेंस के लिए यूज़ होता है अक्सर बिफोर रेडियोग्राफी, एंडोस्कोपी और सर्जरी। फिर है जी हमारी अगली कैटेगरी बल्क लैक्सेटिव्स की। इसमें मिथाइल सेल्यूलोस और सीलियम है। इस्पगुल हस्क जो होता है दैट्स वेरी कॉमन। तो दिस इज़ व्हाट दैट इज़। तो जनरली ये होता है कि ये फाइबर होता है, ठीक है। इनडाइजेस्टिबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बना होता है और बेसिकली ये ना इट काइंड ऑफ फॉर्म्स अ जेल इनसाइड द गट, ठीक है। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की मैनेजमेंट के लिए या क्रॉनिक वाटरी डायरिया की मैनेजमेंट के लिए बड़ा सक्सेसफुल है। ये जो जेल बना लेता है ना बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन, तो उस पे ये होता है कि इंटेस्टाइन जो होता है वो इस सारे बल्क की वजह से डिस्टेंड हो जाता है और आपको पता है कि डिस्टेंशन जो होती है वो पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट करती है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसके एग्जांपल्स हैं मिथाइल सेल्यूलोज, सीलियम सीड्स एंड ब्रान। बी वेरी केयरफुल कि जो मरीज़ इमोबाइल होते हैं उनके लिए ये इतना अच्छा नहीं है क्योंकि दे हैव पोटेंशियल फॉर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन. It can cause bloating and flatulence due to intestinal flora acting on these plant fibers. As I told you, ये fiber होता है तो हमारा फ्लोरा भी इस पे एक्ट करता है। इस पे थोड़ा ये फॉरन एक्ट नहीं करता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है अपना इफेक्ट शो करने में। It is advisable for elderly, for IBS patients and diverticulosis patients. इसकी एक इंस्ट्रक्शन आपने मरीज को ज़रूर देनी होती है कि इसको लेने से पहले भी एक गिलास पानी पिए और इसके साथ भी एक गिलास पानी पिए और आइडियली उसके बाद भी पिए। इसके साथ फ्लूइड लेना बड़ा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए जो मरीज़ फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन वाले होते हैं ऑब्वियसली उनको तो ये सूट नहीं करेगा, जैसे कि हार्ट पेशेंट्स होते हैं। ऑल्सो कोई भी ऐसा मरीज़ जिसकी इंटेस्टाइन में किसी किस्म की नैरोइंग है या ऑब्स्ट्रक्शन टाइप बनी हुई है या बनने वाली है, स्ट्रिक्चर्स हैं, एडहीजन्स हैं, उन लोगों को भी ये एडवाइज नहीं है। ऑल्सो जो लोग वारफरिन लेते हैं उनके साथ वो इंटरफेयर कर सकती है वारफरिन के एक्शन के साथ, तो 2 से 3 घंटे पहले लैक्सेटिव ले लें फिर वारफरिन ले लें या कोई और लैक्सेटिव कंसिडर कर लें। So that's just a picture showing bulk laxatives. Then we have saline and osmotic laxatives. इसमें एग्जांपल है जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट, उसके अलावा पोलीथाइनिल ग्लाइकोल एंड लैक्टुलोज। सो जनरली जो सेलिन कैथार्टिक्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट, ये बेसिकली नॉन एब्जॉर्बेबल सॉल्ट्स होते हैं और ये अपने साथ वाटर ड्रॉ करते हैं तो they are going to cause abdominal distension and obviously that will cause peristalsis and then bowel emptying in a few hours. उसके अलावा पैग जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, ये जनरली कोलोनिक लवाज सोल्यूशंस में यूज होता है टू प्रिपेयर द गट फॉर रेडियोलॉजिकल और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स. Peg powder is available over the counter and it can cause less cramping and gas than other laxatives. Lactulose is really really important, right? Lactulose is a sugar basically, ठीक है? It's a semi-synthetic sugar that acts as a osmotic laxative. ये intestinal enzymes इसको hydrolyze नहीं कर सकते. It gets degraded into different acids and this causes increased osmotic pressure, fluid accumulation, distensions of stools, defecation, ठीक है? जो ख़ास बात है लैक्टुलोज की वो ये है कि जिन लोगों को हेपेटिक एनकैफ होता है, encephalopathy,
उन लोगों में हाई अमोनिया लेवल्स बिल्डअप हो जाते हैं, राइट? एंड उसकी वजह से वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस कराते हैं। तो जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं, दे ऑफन प्रोड्यूस एक्सेस अमोनिया व्हेन देयर इज bleed or excessive protein in our diet, ठीक है? तो इफ़ यू गिव these patients lactulose, तो what happens is वो जो अमोनियम बिल्डअप होता है, अमोनिया बिल्डअप होता है, उसको वो अमोनियम में कन्वर्ट करा देता है, ठीक है? उसकी इन्वायरमेंट इस तरह से कर देता है कि वो आयन उस इन्वायरमेंट में NH4 वाली कॉन्फर्मेशन में रहना प्रेफर करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इजीली एक्सक्रीटेड और ये ब्लड में बिल्डअप नहीं होता। So that's a few pictures. Dufalac is lactulose. Milk of magnesia के अंदर ये magnesium hydroxide है और ये move cause ashes है. Then we have stool softeners. Stool softeners में docusate है, liquid paraffin magnesium hydroxide की combination होती है, cremafin, that's really popular, तो मैंने यहाँ पे mention किया. तो docusate जो होता है ये stool softener भी है और stimulant भी है. तो स्टूल सॉफ्टनर जैसे कि नाम इम्प्लाई कर रहा है कि वो स्टूल के ऊपर एक्ट करता है, वो स्टूल को सॉफ्ट करता है, ठीक है? उसको ज़्यादा परमिएबल बनाता है टू वाटर एंड लिपिड्स, और जनरली इट टेक्स अ लिटिल बिट लॉन्गर फॉर दीज लैक्सेटिव्स टू वर्क, लेकिन ये उन लोगों में ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिन मरीज़ों को आप नहीं चाह रहे कि वो स्ट्रेन करें, ठीक है? शायद उनकी अभी ताज़ी सर्जरी हुई है, या उनके वो पेरी एनल एरिया में कोई मसला है जैसे हेमरॉइड्स है, या उनको वैसे चाइल्ड बर्थ अभी हुआ है, कोई एपिसियोटमी हुई हुई है, आप टाँके लगाए हुए हैं, आप नहीं चाह रहे कि वो प्रेशर लगाए और कोई टाँके डिस्टर्ब हो जाएँ या कोई मसला और डिस्कम्फर्ट हो, या हर्निया के जो पेशेंट्स हैं उनको भी हम नहीं चाहते कि वो स्ट्रेन करें, इवन सम हाइपरटेंसिव पेशेंट्स ऑल्सो, वी वांट देम टू अवॉइड स्ट्रेनिंग, राइट? तो इन लोगों में ये बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि स्टूल सॉफ्ट होता है तो ईजिली पास हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। Then we have lubricant laxatives. Lubricant, again, as the name implies, वो ज़्यादा फोकस इस बात पे करता है कि passage of the hard stools को facilitate किया जाए, ठीक है? Lubrication हो जाए। तो इसमें mineral oil और glycerin suppositories हैं basically। तो ग्लिसरीन सपोजिटरीज बाय द वे थोड़ा सा कोलन को भी स्टिमुलेट करती है, इससे थोड़ी सी जब ये इंसर्ट हो जाती है तो क्रैम्पिंग होती है और बाउल मूवमेंट्स, मतलब क्रैम्पिंग भी होती है और एंड पैसेज जो होता है वो लुब्रिकेटेड भी होता है। तो दैट्स हाउ ग्लिसरीन वर्क्स एंड ग्लिसरीन सपोजिटरीज, राइट? एंड मिनरल ऑयल भी इसी तरह। मिनरल ऑयल के बारे में एक बात नोट करनी है कि इसको जब भी पेशेंट ओरली लेता है तो अपराइट सही तरह बैठ के सीधी पोजीशन में इसको लेना है। अगर लेट के लेंगे तो आप रिस्क करते हैं कि एस्पिरेट हो जाए, आपकी सांस की नाली में चला जाए और लिपॉइड निमोनिया करा दे। So that's a few pictures of lubricant laxatives. Then finally we have chloride channel activators. इसमें example है lubiprostone. ये बेसिकली क्लोराइड चैनल्स पे एक्ट करता है, अगेन एज द नेम implies, और उसकी वजह से देयर इज इंक्रीज्ड फ्लूइड secretion and this causes passage of stool and causes little change in electrolyte balance, ठीक है? ये chronic constipation की ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकता है। इसके साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी मिनिमल है और इससे नोजिया हो सकता है। ये उसके एग्जांपल्स हैं। फाइनली कुछ केसेस में, इमरजेंसी केसेस में एनेमा हेल्पफुल होता है। तो एनेमा जो होता है वो बेसिकली गट को क्लियर कराता है और इमीडिएट कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कराता है। तो क्लीन एनेमा एक पॉपुलर ब्रांड है। इसमें ये होता है कि नर्स आपको एक पोजीशन आपकी बना के तो इस एनेमा को इंसर्ट करती है पर रेक्टली, और 5 से 7 मिनट कम से कम मरीज़ को कहते हैं कि अपने आप को क्लेंच करके रखे और मतलब बेड पे ही रहे ताकि वो एनेमा को मौका मिल जाए टू वर्क। और उसके बाद जब उसको रियल अर्ज फील होती है मरीज़ को कि अब आई शुड डेफिकेट, तो अमूमन पेशेंट सक्सेसफुल होता है पासिंग स्टूल। जनरली स्पीकिंग लैक्सेटिव्स के कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हैं। नंबर 1, ऑब्वियसली हर कॉन्स्टिपेशन के लिए लैक्सेटिव्स नहीं होते, कॉन्स्टिपेशन की कॉज भी मैटर करती है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग बाउल ऑब्स्ट्रक्शन तो वो उसकी मैनेजमेंट और है, ठीक है? और ख़ास तौर पे उसमें आप बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स तो नहीं देंगे। नंबर 2, सस्पेक्टेड appendicitis। नंबर 3, एल्डरली या रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स हैं जिनमें पहले ही देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो वो बड़े ध्यान से लैक्सेटिव्स लें। उसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछ के लें लैक्सेटिव्स, और ख़ास तौर पे स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स, उससे भी ख़ास तौर पे कैस्टर ऑयल प्लीज़ प्लीज़ मत लें, ठीक है?
And that was it for our first video of the pharmacology series. I hope you liked it. If you liked it, let me know by liking my video and comment down below and share it and subscribe to my channel and follow me on my social media. You can give me your input and suggestions there. And yeah, I will see you in the next one. Bye.